خوش نصیب ہیں کہ حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھبرائیں نہیں، اب اس جلسے کی آخری کڑی میں ہوں، میرے بعد اور کوئی ہے نہیں، اس لیے جب تک آپ سننا چاہیں گے معین الدین قادری سنانے کی کوشش کرے گا۔ ابھی میری تقریر شروع ہوئی نہیں ہے، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اسی رنگ میں بولیں گے، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے تو آپ کا دل مچلے گا، اور میں جو بولوں گا یقیناً حضور کے عشق میں بولوں گا، آپ بھی حضور کے عشق میں سننا۔ حضور کی شان کیا ہے، کسی حضرت کے اشعار سے میں بیان نہ کروں بلکہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو میں پیش کر دوں۔ میں 2-3 اشعار پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کلام اعلیٰ حضرت کا، سنیے گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ پورا مجمع ایک مرتبہ محبت سے، ادھر والے ادھر والے ادھر والے سارے لوگ محبت سے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے گا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ علماء کرام تشریف فرما گئے، یاد رکھنا لوگوں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، سننے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ علماء تشریف فرما گئے، ان سے ذرا پوچھئے مسند کسے کہتے گئے؟ مسند کہتے گئے بیٹھنے کی جگہ کو، رفعت کہتے گئے بلندی کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، او لوگوں، جہاں پہ مخلوق خدا کی، جہاں پہ عام لوگوں کی، اللہ کے مخلوق کی شان کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھئے، اے اعلیٰ حضرت سرکار، جب حضور کی شان کی ابتدا، تھوڑا سا کم کر دیجئے، آواز کھول کے اس کو تھوڑا سا کم کیجئے، اچھا بج رہا ہے۔ سنیے گا، اعلیٰ حضرت سے سوال کیجئے کہ اے اعلیٰ حضرت، عالم تخیل میں سوال کریں، اعلیٰ حضرت سرکار آپ فرما رہے گئے کہ حضور کی شان تو شروع ہوتی ہے عرش اعظم سے۔ جب حضور کی شان کی ابتدا عرش اعظم سے ہوتی ہے تو ہماری نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی شان کو دنیا میں دیکھ سکیں۔ ہماری نگاہ کا عالم تو یہ ہے، اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو ہماری نگاہ اسے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر چھت کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو ہماری نگاہ اسے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو اے اعلیٰ حضرت، جب حضور کی شان شروع ہی ہوتی ہے عرش اعظم سے تو پھر ہم حضور کی شان کو دنیا میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا، او دنیا والوں، یہ صحیح بات ہے، تم حضور کی شان کو نہیں پہچان سکتے، حضور کی شان کو دنیا میں مکمل طور پہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یاد کرو میدان محشر ہوگا، حشر کا دن ہوگا، سورج سوا میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، وہاں پہ چیخ و پکار مچی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن عالم یہ ہوگا ہر نظر کانپے اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپے
नूरी चादर ओढ़ कर, नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। तो आला हजरत फरमाते हैं, सुनो सुनो, जो हुजूर की शान को दुनिया में जिसे हुजूर की शान नजर नहीं आती है, कुरान तो पढ़ता है, हुजूर की शान नजर नहीं आती है, तो वो लोग सुने, दुनिया में अगरचे तुम्हें नजर नहीं आती है, लेकिन याद करो मैदान महशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो आलम ये होगा, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब एक शेर और सुनते चले, जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा एक शेर। आज जो कुछ भी हमें नसीब है, यकीनन ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। और याद रखे लोग, स्टेज पे बहुत सारे लोग तशरीफ फरमा गए, कोई आलिम भी बैठे गए, कोई हाफिज बैठे गए, कोई मुफ्ती बैठे गए, आप में से मजमे में कोई डॉक्टर भी बैठा होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई और भी ओहदे पे फाइज होगा, लेकिन याद करें लोगों, ये जितनी चीजें अल्लाह ने जो भी इज्जत अता फरमाई है, आलिम अपनी इज्जत को देखे, हाफिज अपनी इज्जत को देखे, शायर अपनी इज्जत को देखे, खतीब अपनी इज्जत को देखे, इमाम साहब अपनी इज्जत को देखे, मास्टर अपनी इज्जत को देखे, डॉक्टर अपनी इज्जत को देखे। और आला हजरत का ये शेर समाप्त करते चले। आला हजरत ने कहा कि लामर बिल अरिश जिसको जो मिला उनसे मिला, और पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब एक सवाल करूं मैं, एक प्रश्न करूं मैं आपसे, अंधा किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि हजरत अंधा उसे कहते हैं जिसके पास आंखें नहीं हो, या आंखें तो हो लेकिन आंखों में देखने की ताकत ना हो। लेकिन मैं पलट के कहूंगा, सुने सुने लोगों, अंधा एक तरह नहीं होता है, बल्कि अंधा दो तरह का होता है। ये मैं नहीं कहता, सरकार आला हजरत ने बताया है। एक अंधा होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है, एक अंधा वो होता है जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं होती है। लेकिन एक अंधा ऐसा भी होता है, आप और हम रास्ते में चल रहे हैं, सामने से कोई आके धक्के लगा के आगे बढ़ जाए, आप फौरन पीछे पलट जाते हैं और कहते हैं अंधा है, देखता नहीं है, देखकर नहीं चलता। कभी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सामने से कोई आए टक्कर लगा दे, पीछे बढ़ जाए, आप पीछे पलटते हैं और कहते हैं अंधा है, देखकर नहीं चलता। आला हजरत फरमाते हैं, ओ लोगों, वो क्यों कहा? आप बताइए। वो इसलिए, अगर वो पलट के पूछ ले, भाई साहब आपने मुझको अंधा क्यों कहा? मेरे पास तो दो आंखें हैं, मेरी आंखों में बीनाई भी सलामत है, फिर आपने मुझे अंधा क्यों कहा? तो आपका जवाब होगा, तुम्हें दिखता नहीं है, तभी तो तूने मुझे टक्कर मारा है। अब जरा सुनो लोगों, आला हजरत ने बताया, एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है, एक अंधा वो
وہ بھی ہوتا گئے جو آنکھ رکھ کر بھی اندھا گئے، جس کی آنکھ کی روشنی سلامت ہے پھر بھی اسے کچھ چیز نہیں دکھتی گئے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضور کی شان کو قرآن میں پڑھتا گئے لیکن حضور کی شان اسے نظر نہیں آتی گئے۔ اب ذرا سنو اس اندھے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک منتر پڑھ دوں؟ ارے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ ایسے نہیں، ایک کلام ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اگر اس کو آپ نے سنبھال لیا تو معین الدین قادری بولے گا۔ ذرا پورا مجمع سنیں۔ آگے بڑھ کے آگے بڑھ مصطفیٰ کا آگمن، سمجھ رہے ہیں؟ آگمن سمجھ رہے ہیں؟ آگمن سمجھ رہے ہیں یعنی آمد، سرکار کی آمد۔ کیا بولے؟ سرکار کی آمد۔ سنیے، آگے بڑھ کے آگے بڑھ مصطفیٰ کا آگمن، تھوڑی دیر کے بعد وہ ولادت کی مبارک گھڑی آنے والی ہے، جس گھڑی میں ہم اور آپ کے آقا سید الانبیاء تشریف لائے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، چاند و سورج کو پیدا فرمایا ہے۔ سنیں سنیں لوگوں، انہی کی آمد ہونے والی ہے۔ آگے بڑھ کے آگے بڑھ مصطفیٰ کا آگمن۔ ایک بار سارے لوگ مل کے پڑھیے، آگمن ہے آگمن، یہ کوئی بھاری تو نہیں ہے۔ آگے بڑھ ہے آگے بڑھ مصطفیٰ کا، اونچی آواز میں، آگے بڑھ ہے آگے بڑھ مصطفیٰ کا۔ سنیے حاجی صاحب، عرش و فرش سب سجے، عرش و فرش سب سجے، سجی دھرا سجا گگن، عرش و فرش سب سجے، سجی دھرا سجا گگن، اور تریلوک کی زبان پر نمن نمن، نمستتے 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 ہے آچمن۔ آگے بڑھ کے آگے بڑھ مصطفیٰ کا آگمن، آگے بڑھ ہے آگے بڑھ مصطفیٰ کا آگمن۔ اب ذرا سنیے، ایک منتر پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں بھائی صاحب کو، اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تک کلیئر آواز جا رہی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، ایک منتر میں پڑھتا ہوں، میرے ہاتھ میں دیکھیں، حضور دنیا میں تشریف لائے، 63 سال حضور نے اس خاکدان گیتی پر حضور تشریف فرما رہے، ظاہری زندگی حضور کو 63 سال اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس 63 سال میں سے اللہ کے نبی 40 سال تک خاموش رہے، لیکن صرف 23 سال کی ایک قلیل سی مدت میں حضور نے وہ رنگ چڑھایا اسلام کا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے نام لینے والے نظر آتے ہیں، اسلام کے متوالے نظر آتے ہیں۔ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، معین الدین قادری جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بول کر جائے گا، ایک منتر بھی اگر غلط کوئی ثابت کر دے معین الدین قادری مہمان کا انعام دینے کو تیار ہے۔ لیکن دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ایسی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، میں ایسی کتابیں پڑھ کر ہندوستان بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں مسلمان نفرت کی بولی بولتا ہے، جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ مسلمان کو لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتا ہے، اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اسٹیج ہمارا ہے لیکن کتابیں ہم تیری پڑھ کر
मोहब्बत है, हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आज बताकर भी जाऊंगा कि मेरे भाइयों हमारा इस्लाम कहता क्या है। हमारा इस्लाम खूबसूरत मजहब कैसे है, लेकिन दावा है तो दलील भी होनी चाहिए। हम कहते हैं इस्लाम बड़ा सुंदर मजहब है, इस्लाम सबसे सुंदर मजहब है, लेकिन दलील भी तो होनी चाहिए। सिर्फ आपका दावा बगैर दलील के अगर हो, आपका दावा खोखला है। तो जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ और पूरा मजमा इस तेवर के साथ सुनिएगा कि मोइनुद्दीन कादरी को बोलने का तेवर अंदर पैदा हो जाए। देखिए, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। मैंने इसमें निशान भी लगाया है, जो संस्कृत पढ़ने वाले हो वो देख भी सकता है। एक किताब है, देखें, वायुदेव शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्यः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः यो माम जमनादि चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति। और सुनो लोगों, हुजूर की जब बात आती है, अपने तो अपने दूसरे भी हुजूर की प्रशंसा करते नजर आते गए, हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है, लोगों हुजूर की बात हमसे पूछते हो तो सुनो सुनो, हुजूर का आलम ये है, हुजूर का मर्तबा ये है, हुजूर की शान तो ये है। शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरण गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमः कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए। जरा सुनिए, मैं इस मंत्र का खुलासा करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे खामोशी से सुनेंगे मोइनुद्दीन कादरी बोल नहीं पाएगा, इसलिए कि आप बोलेंगे, मेरे अंदर का इश्क बेदार होगा। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताएं, बोले या रसूल अल्लाह, और आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। इस नीयत से बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। सुनिए सुनिए, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा ले, एक बार हाथों को उठा ले पूरा मजमा, स्टेज वाले से भी जो लोग हैं माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे गए, जिन्होंने भी हाथों को उठाया गए, मालिक उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खजरा मरने से पहले जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। क्यों जानते हैं? अपना सब कुछ गुंबद खजेरा कल भी था। और आप हुजूर की आमद का महीना है, यकीनन आपने, अगर आप में से जिन्होंने हाजी साहब ने गुंबद खजरा देखा है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने गुंबद खजरा देखा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह अगर तौफीक देना, अल्लाह दौलतमंद बनाया है, कुछ देखना न देखना, हुजूर का गुंबद खजरा जरूर देखना। जाएंगे ना, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़ कर अल्लाह ने हुजूर के गुंबद खजरा पर डाल दिया है। इतना खूबसूरत है गुंबद खजरा। तो जरा बोले इस नीयत से मेरे मौला, जितनी जोर से जो बोले उन्हें उतनी जल्दी गुंबद खजरा की ज़ियारत अता फरमा दे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी धार। माशाअल्लाह, सुनिए, मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ
ہوں کسی کی دعا بھی قبول ہو یا نہ ہو معین الدین قادری کی دعا قبول ہوگی. جانتے ہیں میری بولی ہو غلط ہو سکتی ہے یہ میں نہیں کہتا, آمنہ کے لال کی بولی غلط نہیں ہو سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں, سنیے حضور فرماتے ہیں سلاسو دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے وہ تینوں جب دعا مانگتے گئے, جہاں دعا مانگتے گئے, جس وقت دعا مانگتے گئے, ان تینوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا گئے بلکہ تینوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. میری بولی غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان, کیا بولے, حضور کا فرمان کیوں جانتے ہیں, ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. تو حضور نے فرمایا ہے سلاسو دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے وہ جب دعا مانگتے گئے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا گئے بلکہ ان تینوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. بتا دوں وہ 3 کون ہے, بتا دوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے, بولیے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. اتنی آواز سے بولے ایسا لگے کہ نبی کا دیوانہ پکار رہا ہے, علی کا دیوانہ پکار رہا ہے. ذرا پورا مجمع جھوم کر سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. ذرا اونچا بولے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد. ماشاءاللہ. سنیں گے وہ 3 کون ہیں, سنیں گے. سنیے آقا فرماتے گئے 3 میں سے پہلا دعوت المظلوم. مظلوم جب دعا مانگتا گئے, مظلوم کسے کہتے گئے, لوگوں آج کسی پہ ناحق ظلم کرتے جا رہے ہو, کسی کو ستائے جا رہے ہو, اگر پڑوس میں کسی کا گھر ہے وہ اگر کمزور ہے ہم اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھتے گئے اور ہم یہ سوچتے گئے ارے میں دیکھ لوں گا تو کتنا بڑا کیا ہے. لیکن یاد رکھنا لوگوں, آج تو پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے, آج تو بغل والے پہ ظلم کر رہا ہے, آج اگر کسی کمزور پہ کوئی طاقتور ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ رات کے اندھیرے میں جا کر رونے لگتا ہے, آنسو بہا کر دعا مانگتا ہے, اے پاک پروردگار عالم میں تو کمزور ہوں, اللہ تو نے اسے تو طاقتور بنایا ہے, میں اگر بدلہ لینا بھی چاہوں وہ میری مار کر اور حالت خراب کر دے گا. وہ تو طاقتور ہے, اس کے پاس 5-6 بیٹے گئے, ان کی لاٹھی مضبوط ہے, ان کے پاس تو دولت بھی زیادہ ہے. لیکن یاد رکھنا لوگوں, مظلوم جب دعا مانگتا ہے اے پاک پروردگار عالم وہ پڑوسی میرا مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں تو نہیں کچھ کر سکتا ہوں لیکن تو تمام طاقتوروں کا بادشاہ ہے, تو مولا, تو احکم الحاکمین ہے, تو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اے مولا میں اس کا اگر بدلہ نہیں لے سکتا, میں تو کمزور ہوں لیکن میں دعا مانگتا ہوں میرے مولا تو اس کا بدلہ اسے عطا فرما دینا اور اس کا سبق اسے دے دینا. حضور فرماتے گئے مظلوم ابھی دعا مانگتا ہے, ابھی ہاتھ کو اپنے چہرے سے دعا مانگ کر نیچے بھی نہیں لاتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. دوسرا حضور فرماتے, جلدی سے چلیے, دعوت المسافر. مسافر جب دعا مانگتا ہے حضور فرماتے گئے مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں
फरमाता है मुसाफिर किसे कहते हैं? जो घर से निकले, अपनी आबादी से निकले, 93 की 92 किलोमीटर का सफर करने का इरादा अगर रखता हो, 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा का इरादा रखता हो, वो शख्स मुसाफिर है। तो मुसाफिर जब जब दुआ मांगता है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। मैं मुसाफिर इंसान हूँ, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला यहाँ जितने लोग हाजिर हैं इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खजरा जरूर दिखा देना, क्योंकि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। ऐसे अच्छा इधर वाले मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? आप भी हुजूर के दीवाने बैठे हैं, आप चुप रहिएगा इधर वालों को। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, माशाअल्लाह पूरा मजमा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी है और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। अच्छा एक शेर पढ़ता हूँ, मजमे से नारा लगना चाहिए। एक शेर मैं पढ़ूं, इजाजत है? इजाजत है? सुनिए। बदला तो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, और दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। अरे माशाअल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जस्ते दियानी नबी। अब जरा सुनिएगा, मैंने क्या कहा? 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, तो मैंने बता दिया है, एक मैं तकरीर के आखिर में बताऊंगा। अब जरा सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, आप तो बोलते हो इस्लाम सुंदर मजहब है, आप तो बोलते हो, लेकिन सिर्फ दावा करने से नहीं होगा, दलील भी देनी पड़ेगी। दलील क्या है? जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, जो लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, वो लोग मेरी गुफ्तगू कान खोल कर सुन ले। अरे तू किस इस्लाम की बात करता है? वो इस्लाम जिसने नाखून काटने का भी तरीका बताया है, वो इस्लाम जानवरों का भी सम्मान सिखाता है। आप कहोगे कैसे? एक मसला मैं बताऊं, एक बात आप बताएं पहले। हमारे हाथ पांव में नाखून है, आप लोगों के भी हाथ पांव में नाखून है? बोलिए ना, हाथों को उठा के नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? उलमा से पूछिएगा, ये उलमा बताएंगे कि इस्लाम कहता है, इस्लाम का तरीका ये है, इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम ये बताता है कि हाथ पांव के नाखून ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक छोड़ सकते हो। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूहे तहरीमी है, इसलिए 40 दिन से ज्यादा कोई नाखून ना बढ़ाए। आज फैशन का दौर है, कोई लड़का ये छोटी वाली उंगली में इतने बड़े बड़े नाखून रखता है, कोई बाएं हाथ के पूरी उंगली में बड़े बड़े नाखून रखता है। सुनो मसला, 40 दिन से ज्यादा नाखून बड़े करना ये मकरूह तहरीमी है। 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। लेकिन एक किताब है फतवाए आलमगीरी, ये किन्होंने लिखवाई है? 500 उलमाए किराम को जमा करवा कर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने ये किताब लिखवाई है अपनी निगरानी में। जरा सुनिएगा, वो उस किताब में एक मसला लिखा है, ये तो 40 दिन तक छूट हमारे लिए है, आपके लिए है, हाजी साहब के लिए है, इन हजरत लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है। लेकिन आप में से कोई या हम में से कोई अगर गाय या भैंस का दूध निकालता हो, जिसको कुआला बोलते हैं, पता नहीं
آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، لیکن جانور کا دودھ نکالنے والا اس کتاب میں مسئلہ ہے کہ وہ 40 دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ وہ 10 دن کے اندر اندر ناخون کاٹ لیا کرے۔ آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے 40 دن تک چھوٹ، حضرت کے لیے 40 دن تک چھوٹ، حضرت کے لیے 40 دن تک چھوٹ، آپ کے لیے 40 دن تک۔ لیکن اگر جانور کا دودھ نکالنے والا ہو تو وہ 10 دن کے اندر اندر ناخون کاٹ لے، اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے لیے بہتر نہیں کہا گیا، لیکن اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ناخون کاٹنے کا خیال کیا کرے، 8 سے 10 دن میں ناخون کاٹ لیا کرے۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ریزن آگے اسی کتاب میں لکھی گئی ہے، ریزن یہ لکھی گئی ہے، وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو لوگ جانور کے دودھ نکالتے ہیں، اگر وہ 10 دن میں ناخون نہ کاٹے، اگر ناخون بڑے رہ جائیں تو جانور کے تھن سے دودھ نکالے گا، کہیں ناخون بڑے رہے تو کہیں جانور کے تھن میں ناخون لگنے کی وجہ سے کوئی زخم نہ آ جائے، کوئی گھاؤ نہ آ جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی عدالت میں یہ پرشن رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، جو مذہب اسلام ایک جانور کا اتنا سمان سکھاتا ہے، وہ انسانوں کی دل کی قدر سکھاتا ہوگا، وہ مانوتا کی کیسی بات پڑھاتا ہوگا۔ لیکن سنو لوگوں، جن کو جو منہ میں آتا ہے وہ بول کر چلا جاتا ہے۔ ایک بات سنیے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ارے اسلام تو کہتا ہے کہ اگر وضو کرنے بیٹھو تو وضو میں پانی زیادہ مت کھاؤ، اگر تو زیادہ پانی خرچ کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ مکروہ لکھا گیا ہے کتاب میں، وضو میں زیادہ پانی بلا وجہ خرچ کرنے کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ارے جو مذہب اسلام پانی کے زیادہ خرچ کرنے پہ بھی روک لگاتا ہے، وہ انسانوں کے خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہے۔ لیکن اور آگے سنتے چلیے، کتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے۔ حضور نے ایسے ہی نہیں 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، پوری دنیا میں آج اسلام کے نام لینے والے ہیں۔ سنیے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، ایک بار پورا مجمع اگر سن رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ذرا سنیے گا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسی عورت تھی، ذرا سنیے غور سے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ سنیے حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسی عورت تھی جو 40 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ لیکن اچانک اس کے گھر میں ایک دن دودھ ہانڈی میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن اچانک ایک بلی آئی، ہانڈی میں منہ ڈال کر اس دودھ کو پی لیتی ہے۔ اس عورت نے دیکھا، بڑا غصہ آیا، اس نے اس بلی کو کمرے میں بند کر دیا، باہر سے تالا لوک کر دی، چلی گئی اپنے میکے، بھول گئی کہ بلی کو ہم نے کمرے میں بند کیا ہے۔ 10 دن کے بعد جب گھر پہنچتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، اچانک یاد آیا، ارے ہم نے تو ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اچانک جب یاد آیا تو دل تڑپ اٹھا، تالا کھولتی ہے، دیکھتی ہے بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمرے کے اندر 10 دن کے اندر مر گئی تھی، بلی کی لمش پڑی تھی، بلی پہ مکھیاں بھنبھنا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اس عورت نے بلی کو اٹھایا، باہر پھینکنے چلی گئی، جیسے ہی جنگل میں بلی کو جا کر پھینکتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں آواز آئی، اے عورت، ارے تم نے بلی پر رحم نہیں کیا ہے، بلی پر رحم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تیرے 40 سال کی عبادت کو برباد فرما دیا ہے۔
का भी सम्मान सिखाता है हमारा मजहब इस्लाम। और आगे दूसरा रुख सुनिए, आका फरमाते हैं बनी इसराइल ही में एक ऐसी औरत थी जिसने 40 साल तक गुनाह में गुजारा था, 40 साल तक बुराई की थी, लेकिन अचानक एक दिन रास्ते से गुजर रही थी। इतनी बड़ी पापी थी, इतनी बड़ी गुनहगार थी, इतनी बुरी थी कि अगर रास्ते से गुजरती थी छोटे छोटे बच्चे देखकर कहते थे अरे भागो भागो, वो बुरी और गुनहगार औरत आ रही है, कहीं उस पे अल्लाह का अजाब आएगा, उसका छींटा हम लोगों पे भी कहीं ना पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। वो औरत इतनी बड़ी बदकिरदार थी, 40 साल तक गुनाह की थी, अचानक एक रास्ते से गुजर रही थी, देखती है धूप शिद्दत की गर्मी है, सख्त धूप है, पांव चल रहे हैं, लोगों के हाथ पांव में छल्ले पड़े जा रहे हैं। एक रास्ते से गुजर रही थी, देखी एक कुआं नजर आया, कुएं के करीब में एक कुत्ता का बच्चा, छोटा सा पिल्ला कुत्ता का बच्चा वो नजर आया, जो प्यास की वजह से अपनी जबान को लटकाए हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है, जो कुएं के इर्द गिर्द कीचड़ है उसी कीचड़ को चाट रहा है। अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस औरत ने उस कुत्ते के बच्चे को देखा, दिल में रहम आ गया। जैसे ही रहम आया, रस्सी तलाश करती है, डोर तलाश करती है, रस्सी भी ना मिली, डोर भी ना मिली, बाल्टीन भी ना मिली। उसने क्या किया, एक तरकीब सूझी उसे, अपना दुपट्टा उतारती है, दुपट्टा उतार कर दुपट्टे को फाड़ती है, उसकी रस्सी बनाती है और अपने पांव से जूती को उतारती है, उसका डोर बनाती है, उस दुपट्टे से बनी रस्सी को उस जूती में बांध देती है, कुएं में डालती है। थोड़ा सा पानी बाहर आया, उसने सोचा चलो इसी से कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझा दी जाए। उस औरत ने जैसे ही पानी जूती के जरिए, रस्सी के जरिए निकाला और कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जा रही थी, इधर कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो पानी टपकाती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। आवाज आई, ए औरत, अरे तूने 40 साल तक तो गुनाह किया था, लेकिन सुन, तूने एक कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझाई है। अल्लाह तेरी इस अदा से इतना राजी हो गया है, अल्लाह ने तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम कहता है। इस्लाम एक सुंदर मजहब है। इस्लाम ने तो जानवरों के भी हुकूक बताए हैं। हुजूर फरमाते हैं कभी जानवर को गाली दिया करो, क्योंकि जानवर को गाली देना, अगर कोई जानवर को गाली देता है वो भी गुनहगार होता है। इसलिए ये हमारा इस्लाम है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आज भी लोग हुजूर की बातों पे अमल कर लें, हम किसी के चक्कर में न पड़े, बल्कि हमारा सब कुछ किबला काबा, सब कुछ है तो मदीने वाले मुस्तफा है। आला हजरत ने फरमाया कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का देखो। ये हमारा इस्लाम है। इसलिए इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कयामत तक कभी खतरे में रह सकता है। जरा पूरा मजमा बोलो हाथों को उठाकर, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में ऐसा लगे कि मुस्तफा का दीवाना, इस्लाम के बेटो, अगर इस्लाम का नमक खाया है, किसी का हाथ नीचे न रहे, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, ये हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन जो इस्लाम को नहीं समझते वो दूसरों के चक्कर में कभी इस दरबार कभी उस दरबार। अरे जाना ही है ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे चले जाओ, जो उनका शहजादा है। जाना है मखदूम पांडवा के यहाँ चले जाओ, जाना है मखदूम किचौचर के यहाँ
जहाँ जाओ, जाना है साबिर पाक की बारगाह में जाओ, जाना है आला हजरत की बारगाह में जाओ। और जब इन सब जगहों पे घूम लो, अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के गुंबद खदरा की छांव में जाकर बैठ जाना, दिल को वो सुकून मिलेगा। मैं कहता हूँ जो हुजूर ने फरमा दिया है उस पे जो भी अमल करेगा अल्लाह उसे दुनिया में भी सुकून अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र में भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। हाँ ऐसे सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी हुजूर की बात पे अमल करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं हजरत कि अल्लाह उसे दुनिया में भी सुकून अता फरमाएगा, आखिरत में भी सुकून अता फरमाएगा। आप जानते हैं कैसे? हुजूर की एक बात को ले लें, एक जुमले पे ले लें, अल्लाह अकबर, दिल में ठंडक पड़ जाएगी। आज सुकून ढूंढते हैं ना, 10 बेटे मेरे मुंबई रहते हैं, हजरत तावीज कोई दे दीजिए इमाम साहब, पैसा बचता ही नहीं है। याद रखिएगा 1000 तावीज ले लो, अगर हुजूर की बातों पर अमल न करोगे ना तो कोई तावीज तुम्हारे काम नहीं आने वाली है। हुजूर की बातों पर अमल करें। कल जुलूस में निकलेंगे, अरे बोलिए ना, निकलेंगे इंशाअल्लाह, पूरा मजमा बोले निकलेंगे, झंडा लेकर निकलेंगे, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते निकलेंगे। जमाने वालों को पैगाम क्या देंगे? क्या सिर्फ जुलूस में निकलना यह हुजूर के आशिक होने के लिए काफी है? मैं बात कड़वी कह रहा हूं लेकिन सुनिए, क्या सिर्फ जुलूस में झंडे लहरा लेना, क्या हुजूर इससे राजी हो जाएंगे? सुने, झंडे भी निकाले, वो कैसा आशिक रसूल है जो हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता है। हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उस नमाज को छोड़ते हो, क्या हुजूर तुमसे राजी होंगे? क्या राजी होंगे? आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ जुलूस में नारे लगाने जलसे में रात भर बैठ जाए। असल में आशिक रसूल वो होता है जो जलसे में भी बैठता है, जुलूस में भी झंडे लेकर सरकार की आमद मरहबा कहते निकलता है। और जब आजान होती है तो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। बेनमाजी कभी आशिक रसूल नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों जो नमाजी होगा वही असल में आशिक रसूल होगा। मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए आज के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में ये वादा करें कि कल से इंशाअल्लाह हम और आप सब नमाज की पाबंदी करेंगे। जरा हाथों को उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। क्यों जानते हैं? आशिक रसूल वो होगा जो जुलूस में भी जाएगा और नमाज भी पढ़ेगा। सिर्फ जुलूस में जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका दावा खोखला है, दावा झूठा है, क्योंकि है गैर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ। और ये पैगाम मैं दे रहा हूं, इसको दिल की तख्ती पे लिख लें, है गैर नबी से महब्बत नमाजी हो नारे तकबीर, नारे आवाज से जश्न मिलादुन नबी। सुनिए, एक तो यहाँ का सिस्टम हजरत जानते हैं, दूसरी जगह तारीख दे चुका था लेकिन हाजी साहब के इसरार थे, और इनसे ज्यादा मेरी अहलिया के इसरार थे। बनारस की तारीख जाए तो वो कहती अरे चले जाइए, क्योंकि हाजी साहब मेरा ख्याल कम, अहलिया का ख्याल ज्यादा रखते हैं। मुझको कुछ दे ना दें लेकिन उनके लिए साड़ी तोहफे में जरूर देते, बनारस की साड़ी। हाँ,
नहीं कोई मामला नहीं, लेकिन वो जब भी इनके यहाँ आया तो छोड़िए। अभी महफूज भाई क्या भदोई कुछ दिनों 2 साल पहले आया था, 2-3 साल पहले, हाँ, तो वहाँ भी यहाँ के कारवान रजा कमेटी वालों ने यहाँ से वहाँ उलमाए किराम के लिए तोहफा साड़ी भिजवाया था। हाँ, ये देखें 2-3 रुमाल, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक शेर सुने, मिलेगी खबर में रागत नमाज़ी हो जाओ। सुनिए एक शेर, अज़ान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। आज बड़ा अलमिया है, आजान हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, आजान हो रही है, लोगों के खेल कूद बंद नहीं है, आजान हो रही है, घर में लोग काम काज में व्यस्त रहते हैं, आजान का एहतराम नहीं करते हैं। याद रखना, उलमा फरमाते हैं जो आजान का एहतराम नहीं करता है, अल्लाह ताला हो सकता है मरने से पहले अल्लाह उसका ईमान कहीं छीन न ले, यानी ईमान के छिन जाने का खतरा है। हल्के में मत लीजिए, जब भी आजान सुनिए, अगर बातचीत कर रहे हैं तो फिर गुफ्तगू को बंद कर दें, आजान को सुनिए। अगर माँ बहनें झाड़ू लगा रही है तो वो भी उनको बताइए थोड़ी देर रुक जाए। अगर आप खेल कूद में हो, आजान की आवाज सुनाई दे तो फिर खेल कूद को बंद कर दो, पहले आजान का जवाब दे दो, फिर उसके बाद जो काम करना है करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा, सुनो, आजान सुनी कि जो को बंद करते हैं तो क्या होगा, उसे पुकारेगी जन्नत नमाज़ी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत नमाज़ी हो जाओ। हुजूर की एक बात पे अमल करेंगे ना। अच्छा, मैंने एक मंत्र भी पढ़ा था, इस मंत्र में कहा गया, ये आज कह रहे हैं लेकिन याद रखें मदीने वाले मुस्तफा ने जो फरमा दिया है वो हो के रहा है। आज ये बात अपने तो अपने दूसरे भी मानने को तैयार है, इसलिए के लोगों हम यूं ही हुजूर पे अपनी जान थोड़ी लुटाते गए। हम आमना के लाल थे, अपनी जान ऐसे ही थोड़ी कुर्बान करते गए, हम ये ऐसे ही थोड़ी कहते गए, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। आप थक गए हैं, अगर नहीं थके हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप थके नहीं है बल्कि समाप्त कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। वरना तो ऐसे भी हाजी साहब, मेरी तकरीर आपके टाइम से आगे चल रही है। हाँ, मुझको कहा गया था कि हजरत आप रहिएगा 11 तारीख को, और ये 12 तारीख शुरू है। हाँ, तो इसीलिए मैं अपने टाइम में बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से बोलूंगा, लेकिन तब तक बोलूंगा जब तक जिस्म में जान बाकी है, तब तक हुजूर की बातें करता रहूंगा, हुजूर की मोहब्बत की बातें करूंगा, क्योंकि ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। इसलिए कि ये जान भी, ये दुनिया भी, ये सारी चीजें हुजूर के सदके में बनी है। ज़मीनो ज़मान, पूरा मजमा ज़मीनो ज़मान, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, या रसूल अल्लाह दहन में ज़मान, ऊंचा बदन में है जान, हम आए यहाँ किसी के बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए आए हैं। तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। ऐसे हम थोड़ी कहते हैं हुजूर, आहा सुनिए, हुजूर के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। हुजूर ही का सदका है। आज अगर कुछ बोल रहे हैं ना, ये हुजूर का सदका है। आज अगर बेटा
باپ کی عزت کر رہا ہے تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آج اگر بیٹی کو لوگ اپنی گود میں اٹھا کر سینے سے لگا رہے ہیں نا، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ورنہ تو لوگ بیٹیوں کو قبر میں زندہ ڈال دیتے تھے اور مونچھ میں چھاؤ دیتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ آمنہ کے لال ہیں جنہوں نے بتایا لوگوں بیٹیاں قبر میں ڈالنے، گڈھے میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ میرے پاس بھی بیٹی ہے فاطمہ، جو بیٹی کو سینے سے لگائے گا، اچھی تربیت کرے گا، اچھے گھر میں شادی کروا دے گا، لوگ مجھ کو تلاش کریں گے، میں اس بیٹی کے باپ کو قیامت کے میدان میں تلاش کروں گا۔ یہ مدینے والے جزاک، یہ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ سنیے ایک منتر میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ ادھرما بھی بھوان۔ آج جو لوگ کہتے ہیں دنگے فساد زیادہ پھیل رہے ہیں، کیوں پھیل رہے ہیں؟ سنو، ادھرما بھی بھوان۔ کہاں کے ادھرما؟ ایک ہوتا ہے دھرم، ایک ہوتا ہے ادھرم، ایک ہوتا ہے سویدھا، ایک ہوتا ہے اسویدھا، ایک ہوتا ہے پن، ایک ہوتا ہے پاپ۔ تو سنو، دھرم تو دھرم ہے، ادھرما یعنی برائی، ادھرما بھی من زیادہ، بھوات من بہت، ادھرما بھی بھوات، برائی کے زیادہ بڑھ جانے سے شنا پرتشنتی کل استریا، اچھے گھر کی عورتیں بھی اسی برائی میں دھیرے دھیرے ملوث ہو جاتی ہے۔ اور استریشو دشتاشو وارشنی جایتے ورن شنکرا۔ اب سنو لوگوں، یہ میں کیا بولوں، دوسرے بھی بول رہے گئے۔ وہ ایک پنڈت نے اور کہا گئے، پنڈت سومناتھ ورما نام ہے، اس نے آگے یہ بھی لکھا گئے، کہا کہ لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، گیا گھر میں مت چھوڑ، اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ، اے لوگو اس سے ناتا جوڑ، اور بن کے منشیہ آیا ہے جگ میں، کیوں تو گیا یہ بھول، یہ جگ سے من کی پھلواری، جس کا منشیہ ہے پھول، اے لوگو جس کا منشیہ ہے پھول۔ اور پنڈت نے آگے جو لکھا غضب لکھا گئے، پنڈت نے کہا لوگوں آج حالات ایسے ہو گئے گئے، ماٹی کی مورت کو پوجے، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان۔ آگے سنیے، جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اپمان زمانہ، اس کا کرے اپمان، اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان، جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان، اے لوگو اس کی بڑی ہے شان۔ دنیا میں جو بولنا ہے بول لے، لیکن آمنہ کے لال کی بولی کی طرح کسی کی بولی اونچا بولے، آمنہ کے لال کی بولی کی طرح کسی کی بولی کیوں؟ جانتے ہیں حضور کی ایک ایک بات پہ اگر کوئی عمل کر لے نا زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ حضور فرماتے گئے اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ تمہیں بنا لے گا۔ حرام سے بچو، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ لوگ آج حاجی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دوسرے کی بےایمانی کر کے پیسے جمع کر کے مکان بناتے گئے، وہ یہ سوچتے گئے اگر میں جیتے جی بچے کو 10 منزلہ مکان بنوا کر نہیں دیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد؟ اگر 10 بیگھے زمین نہیں دیا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے حرام کماتا گئے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا گئے کہ وہ حرام کمایا، جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، چوری کر کے، بےایمانی کر کے، ظلم ڈھا کر وہ تو پیسے اکٹھے کر لیا، مکان بنوا دیا، زمین خرید لیا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا جس بیٹے کے لیے جمع کیا تھا
होते गए कि वो बेटा शराब के नशे में मकान बेच लेता है, जमीन बेच लेता है, वो भी शराब पी पी कर दुनिया से चला जाता है। इसलिए लोगों, हराम का माल बच्चों के लिए न छोड़ो, बल्कि ये सोचो अगर एक झोपड़ी ही मैं छोड़ कर जाऊंगा, अगर हलाल की झोपड़ी रहेगी, उसी झोपड़ी के जरिए मेरे बेटे को अल्लाह ताला दुनिया में मालदार भी बना देगा, इज्जतदार भी बनाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बनाएगा। हलाल ने शराब को हराम करार दिया है। मत पियो शराब मेरे भाई। आज शराब पीते हो, कभी सोचा है अगर जवानी में तेरे गुर्दे फेफड़े सड़ गए, दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा? हमारी न सुनकर सही, इमाम की सुनते हो मत सुनो, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम अपने दिल की तो सुनो। कभी तकिया पे सर रखना रात को और सोचना अगर शराब पीते पीते तू दुनिया से जवानी में चला गया, तो फिर बता तेरे छोटे बच्चों का क्या होगा, तेरी जवान बीवी का क्या होगा? तुझे तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था, साए पीरी बुढ़ापे की लाठी बननी थी, लेकिन तू शराब पीकर जवानी में चला जाएगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई तेरे बच्चों को देखने वाला नहीं होगा। हमने तो देखा है जब भाई मर जाता है, छोटा भाई दौड़ कर आता है, भतीजे के सर पे हाथ तो फेरता है, उनके रुखसार को चूमता है, उसको सीने से लगाता है, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ शहारम 40वें तक रहती है, उसके बाद कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए लोगों, अगर तू जवानी में चला गया, तेरे बच्चे यतीम होंगे। ईद के दिन सबके बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाएंगे, तेरे बच्चे दूसरों के मुंह तकेंगे, कोई तेरे बच्चे को कपड़ा देने वाला नहीं होगा, कोई तेरे बच्चों के सर पे हाथ फेरने वाला नहीं होगा, तेरी जवान बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तेरे बूढ़े माँ बाप को लोग ताने से बात करेंगे, देखो बुढ़ा अभी भी रिक्शा चलाता है। इसलिए लोगों, अगर हुजूर का इश्क सीने में जर्रा बराबर है, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में छोटी सी भी है, तो शराब से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, एक पाक साफ जिंदगी गुजारो, ताकि अगर मौत आ जाए, जनाजा घर से निकले, अपने तो अपने, दूसरे भी कहें अरे ये किसी गुनहगार, ये किसी कट्टार का जनाजा नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। मत पियो शराब, अपने दिल की तो कम से कम सुन लो मेरे भाई। जवानों, गवर्नमेंट ने नहीं बंद किया है तो क्या मतलब, इस्लाम ने तो बंद किया है ना। आज बिहार में आज शराब बंदी हो रही है ना इधर, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने तो 1500 साल पहले ही मना करवा दिया है। क्यों मना किया? इसलिए कि शराब ये तमाम बुराइयों की जड़ है। आदमी शराब पीता है, ज़िना भी कर बैठता है, शराब पीकर गाली भी करता है, शराब पीकर झूठ भी बोलता है, और शराब पीने से उनके फेफड़े भी खराब हो रहे हैं, गुर्दे भी खराब हो रहे हैं। इसलिए हराम मत खाओ, हराम मत पियो, हराम काम मत करो, हराम बोली ना बोलो। अल्लाह फरमाते हैं इत्तक़िल महारिम तकुन अबुदन नास, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। हराम से बचो, ये नहीं कि 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं और उधर झूठ भी बोलकर पैसा कमा रहे हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे और उधर हम चोरी भी, बेईमानी भी, डकैती भी कर रहे हैं। नहीं, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। बोलकर बताओ, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। और सुनिए, एक बात आपने याद कर लिया, दूसरी चीज सुनिए। हुजूर फरमाते हैं बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अग़ना अन्नास, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। अल्लाह अकबर। ये छोटी बात नहीं है भाई, हुजूर की हदीस है। हुजूर फरमाते अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ। लेकिन आजकल होता उल्टा है, अल्लाह जो दिया है उसका शुक्र अदा नहीं कर रहा है। अगर अल्लाह ने साइकिल दिया है, साइकिल पे शुक्र अदा नहीं करता है। अगर
बाइक अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा नहीं करता है, बल्कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, अपना सर खुजाता है, जान उसको मोटरसाइकिल हमको साइकिल ही मिली है। अब अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल अता किया है तो वो फोर व्हीलर को देखता है और कहता है जान उसको फोर व्हीलर मिली, हमें तो मोटरसाइकिल ही मिली। यहाँ तक कि हमने देखा हजरत कि लोग साइकिल को गाली देते, यहाँ तक देखा है। क्यों जानते हैं? अकीदा ये रखिए अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। पूरा मजमा बोलिए, क्या अकीदा रखिए? अल्लाह जो करता है। अब किसी का जवान बेटा अगर चला जाए ना, लोग कहते हैं हाँ अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कुफ्रिया बोली है। तू नहीं जानता क्या? तू बताएगा कि अल्लाह को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अरे वो अल्लाह जितनी एक 70 माह से ज्यादा बढ़कर अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है, वो अगर किसी मुसीबत में बंदे को डालता है उस मुसीबत में भी उसके बंदे की भलाई है। अकीदा ये रखिए, वरना तो हालात ये है लोग साइकिल चल रहे अगर पंचर हो जाए गुस्सा होने लगते, गालियां बकने लगते हैं, कोसने लगते हैं। आज ही साइकिल को पंचर होना था, बाइक से चल रहे अगर बाइक का टायर पंचर हो जाए तो आज ही पंचर होना था, लोग गालियां बकने लगते हैं, तरह तरह की कोसने लगते हैं। लेकिन याद रखें, अकीदा ये रखें अल्लाह जो करता है, क्या बोले ना भाई, अल्लाह जो करता है। देख लीजिए क्या जा रहा है, किसी का बच्चा है इसको देख रहे हैं। इस रोड में तो रोजाना हजारों बसें चलती होंगी, फिर भी लोगों का मन नहीं भरा है। उलमा को देखिए, उलमा को देखेंगे, उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। हाथों को उठाकर बोले सरकार की आमद, पूरा मजमा हुजूर की मोहब्बत में, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह जो करता है, ऊंचा बोले अल्लाह जो करता है। एक बादशाह था, बादशाह उसका एक वजीर था। वजीर की आदत ये थी कुछ भी होता हर काम में कहता अल्लाह जो करता है बेहतर करता, अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक दिन बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बुखार, ठंडी, खांसी, सर्दी। वजीर को बुलाया था, वजीर को बुला कर लाओ। वजीर आया, कहा क्या हुआ बादशाह सलामत? कहा रे डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुलाओ। कहा क्यों बादशाह? कहा कि थर-थर बदन कांप रहा है, तेज बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, बहुत तेज खांसी है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कहा बादशाह बुखार है, सर्दी है, खांसी कहा? कहा कि बादशाह घबराइए मत, अल्लाह जो करता है वो गुस्सा आया बादशाह को, हमें तो कांप रहे हैं, ये कह रहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। किसी तरह गुस्से पे कंट्रोल कर लिया उस दिन। एक दिन बादशाह की जब तबीयत सही हो गई, जंगल में निकला, जंगल में घोड़े पे सवार होकर टक जा रहा है। अचानक से जमीन पे गिर गया बादशाह, एक छोटी वाली हाथ की ये छोटी उंगली टूट गई। बादशाह दर्द के मारे करा रहा था, अरे जल्दी आओ, बचाओ बचाओ। वजीर भागता आया, कहा बादशाह क्या हो गया? कहा कि गिर गया घोड़े से। कहा कोई खतरा तो नहीं हुआ? कहा कि देखो छोटी उंगली मेरी टूट गई है। कहा कि बादशाह अल्लाह जो करता है। बादशाह का तो लगा कि तलवे का गुस्सा सर पे आ गया, पकड़ इसको, कैद में डालो, जेल में डालो इसको। कहा कि बादशाह हमने कौन सी गलती कर दी? कहा उंगली टूट रही है, तो पता अल्लाह जो करता अच्छा करता है। कहा कि बादशाह फिर भी मैं कहूंगा जेल चल रहा था। कहा कि बादशाह अगर मुझे कैद हो रही है तो अल्लाह जो करता है। और गुस्सा आया था, इसको बंद कर दो, सब दिन के लिए हवाला किया, खोलना ही नहीं है। जब बादशाह की उंगली ठीक हो गई, थोड़ी सी पट्टी बन गई थी, एक दिन बादशाह शिकार पे फिर निकला, तो जंगल में जो कुछ लोग रहते हैं आदमखोर, अब वो लोग ने बादशाह को देखा, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, उसे पकड़ के ले गया। उसके यहाँ एक रूल था, एक नियम ये था, कायदा ये था, उसके यहाँ साल में एक दिन खूबसूरत इंसान की बलि चढ़ाते थे, बलि देते थे, ज़बह करते थे, जिसमें कोई खराबी ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई कमी ना हो। देखा हट्टा गुट्ठा नौजवान बड़ा खूबसूरत है, क्या समझता बादशाह है क्या है? पकड़ के ले गया जंगल में, तख्त पे चढ़ा दिया। जैसे ही बादशाह की नजर पड़ी छोटी उंगली पे, देखा पट्टी बंधी है। कहा क्या
कहा उसे उतारो उतारो, इसमें तो ऐब है और हम ऐबदार इंसान की बलि नहीं देते हैं, इसे छोड़ दो, दूसरे को पकड़ के लाओ। बादशाह वहां से उतरा, भागा, भाग के पहले सबसे पहले पहुंचा कैद के पास और कहा अरे जल्दी वजीर को निकालो, जल्दी निकालो। वजीर बाहर आया, कहा बादशाह क्या हुआ? कहा अब तक तू कहता था, अब मैं भी कहता हूँ, अल्लाह जो करता है, पूरा मजमा बोलो, अल्लाह जो करता है। इसलिए अगर चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो घबराइएगा नहीं। अभी एक वो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था ना, अरे हुआ था, उसमें एक लड़की की फ्लाइट छुट्टी थी, पढ़ा था आपने खबर, 10 मिनट के लिए। पहले तो अपने आप को कोस रही होगी, हाय अल्लाह ट्रैफिक की वजह से मैं फंस गई इसलिए मेरी फ्लाइट छूट गई। लेकिन जब फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई, उस वक्त वो कहती होगी जो भी अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। इसलिए टायर पंचर हो जाए तो गालियां मत बको, बल्कि ये कहो अल्लाह जो करता है। हो सकता है आगे जाकर बड़ा हादसा आने वाला था, इस छोटे हादसे के जरिए अल्लाह ने बड़े हादसे को टाल दिया है। तो बोलो पूरा मजमा बोलिए, कुछ भी होगा अल्लाह जो करता है। किसी का इंतकाल हो जाए अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। सुनिए, और यहाँ साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, या अल्लाह उसको मोटरसाइकिल, हमको साइकिल ही, उसको 4 व्हीलर, हमको मोटरसाइकिल ही। याद रखें, हुजूर फरमाते हैं अपने से नीचे वालों को देखा करो, अपने से ऊपर वालों को मत देखा करो। नीचे वालों को देखोगे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाओगे, ऊपर वालों को देखोगे तो नाशुकरा बन जाओगे। अपने से किसको देखना है? नीचे वाले। अच्छा बोला, किसे देखना है? नीचे वाले को। मोटरसाइकिल अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे मौला तेरा शुक्र है लाख लाख, कम से कम इस साइकिल वाले से तो मुझे अच्छा बनाया है। मारुति वाला, 4 व्हीलर वाला, बाइक वाले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन यहाँ तो अगर जो मिला है उसका नहीं अदा करता है, जो नहीं मिला है उसके लिए दिन रात रोता है, परेशान करता है। अरे अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का अगर तुम अल्लाह की नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह का वादा है लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तेरी नेमतों में इजाफा फरमाता जाएगा। अल्लाह का वादा है। लेकिन यहाँ मामला ये है, जो है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं, जो नहीं है उसके लिए नींद कुर्बान, रात भर बेदार, टेंशन में, उलझन में, परेशानी में आदमी जिंदगी गुजारता है। अगर इजाजत हो तो एक बात बता दूं, अरे बोलिए ना, टाइम कितना हो गया भाई? 3:15 हो गए हाजी साहब। बहुत टाइम है, कौन घंटा अभी है? अच्छा अच्छा, और बोले जरा हाथों को उठाकर बताइए, बोले हुजूर की बातों पर अमल करेंगे। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जितना दिया है, जो दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें दिल का भी दुनिया का भी मालदार बना देगा। अल्लाह जितना दिया है, लेकिन हाजी साहब होता यह है आज जो है उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए बेचैन। ऐसे ही ना, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर देखिए, एक बादशाह था, एक बादशाह था, ये मौलाना रूम ने फरमाया है। उस बादशाह ने एक दिन अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ए वजीर ये बताओ, अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है, मेरे पास मकान है, जमीन है, नौकर है, चाकर है, घोड़े है, बंगले है, हाथी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे नींद नहीं आती है। लेते आइए, मैं जाके दुकान एक खोल ही दूंगा। इतना दे दीजिए कि एक बिजनेस तैयार हो जाए। ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे। कोई बात नहीं, ये देखिए आप लोग तो माशाल्लाह उसी कारोबार से जुड़े हैं। यहाँ जितने लोग कारोबार करते हैं अल्लाह ताला सबों के कारोबार में बरकत अता फरमाए। सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, बादशाह के वजीर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन रात को फिर भी नींद नहीं आती है।
लेकिन मेरा वो नौकर देखो गेट पे, वो जब बिछाता है गमछे जहां डाल लेता रुमाल वहीं पे सो जाता, नींद आ जाती है। वजीर ने कहा बादशाह उसके पास कुछ नहीं है, झोपड़ी है इसलिए आराम से सोता है, आपके पास ये दौलत ये मकान नौकर चाकर है यही नहीं सोने देता है। कहा कैसे? कहा मेरी एक बात मानिए। कहा कि क्या? कहा उस नौकर को बुलाइए जो दरबार है गेटमैन है। कहा कि बुलाइए। बुलाया गया। कहा कि मेरी मानिए इसको 100 सोना का सिक्का दे दीजिए। 100 सोना का सिक्का। कहा दे दो। वजीर अंदर गया, 100 सिक्का निकाला, 100 में से एक सिक्का अपनी जेब में रख लिया। कितने सिक्के बच गए? अरे बोलिए भाई कितने बच गए? एक सिक्का जेब में रखा, कितने बच गए? 99 बांधा रुमाल में और 100 सिक्का करके उसको दे दिया। अब वो नौकर वो निकला, घर पहुंचा रात के 10 बजे। बीवी को उठाया, बच्चों को बेदार किया, कहा रे जल्दी उठो जल्दी। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा कि देखो बादशाह सलामत हमसे खुश होकर आज मुझे 100 सोना का सिक्का इनाम में दिया है। बैठ गया गिनती करने, रुमाल के गिरा को खोला, गिनती करता जा रहा है। एक मरतबा गिना 99 ही हुआ, दूसरे बार गिना 99, तीसरे बार 99। बेटा आ गया, कहा हटिए आप लोग का मैथ कमजोर है, हमको गिनती करने दीजिए। अब वो बेटा करने लगा गिनती, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 आई का हमको गिनती करने दो, वो भी गिनती की 99। बीवी आई का तुम लोगों के मैं कमजोर है हट जाओ, मैं गिनती करती हूँ, वो भी गिनती करती रही 99। रात गुजर गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, रात भर नहीं सोया, फिर चला गया ड्यूटी पे। गेटमैन बन के वहाँ खड़ा है। बादशाह ने वजीर को बुलाया, कहा इधर आओ। अरे कल जो 100 सोने के सिक्के दिया था उस नौकर को क्या हुआ? कहा बादशाह वो देखिए वहाँ पे नींद में झूम रहा है। कहा जी क्यों सो रहा है? कहा बादशाह क्या बताए, आपने जो 100 सिक्के दिया था पता नहीं एक सिक्का कहाँ गिर गया। रात भर मैं भी गिनती करता रहा, बीवी भी गिनती करती रही, बेटा बेटी सब गिनती करते रहे, लेकिन 99 ही सिक्का पूरा हुआ। गिनती करते करते सिक्का तो एक नहीं मिला, लेकिन सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। वजीर ने कहा बादशाह माजरत चाहता हूँ, जेब में हाथ डाला, कहा कि मैं तो इसको 100 का के 99 ही दिया था, गिरा नहीं है सिक्का, मेरी जेब में है, ये लीजिए दे दिया। कहा बादशाह देखे इसको 99 सिक्के मिले, वो मिलने की खुशी नहीं हुई, एक सिक्का जो नहीं मिला उसके लिए पूरी रात बेकार रह गया, पूरी रात नींद की खत्म हो गई। तो लोगों यही हाल लोगों का है। अल्लाह ने जमीन दिया है, मकान दिया है, गाड़ी दिया है, औलाद दिया है, सारी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। जो नेमत